GTV के साथ मैं हूं शहजादी कमल और मैं हूं रानी सैफुल्ला खान। हेडलाइंस आपने जानी, आपको अपडेट करेंगे। कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी डायलॉग कॉन्फ्रेंस के खिताब में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भारत की जानिब से क्रूज मिसाइल पाकिस्तान में गिरने पर तशवीश का इजहार कर दिया। जनरल बाजवा ने दो टोक अल्फाज में दुनिया पर वाज़ेह कर दिया कि आखिरी दहशत गर्दी के खात्मे तक जद्दोजहद जारी रहेगी। मजीद ये भी कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ 90,000 से ज़ायद जानों की कुर्बानियां दी हैं। हमने बेशुमार कुर्बानियां देकर दहशत गर्दी पर काबू पाया है। Ladies and gentlemen, toward the east, situation along the line of control is satisfactory and fairly peaceful. Mercifully, we have not seen any major incident along the line of control since last 1 year, which has brought great relief to the people living along both sides of the line of control. However, the recent incident involving Indian launching a supersonic cruise missile into Pakistan on 9th March 2022 is of serious concern. Unlike other incidents involving strategic weapon system, this is the first time in history that a supersonic cruise missile from one nuclear-armed nation has landed in another. This raises serious concern about India's ability to manage and operate high-end weapon systems, and equally concerning is India's indifferent attitude in not informing Pakistan immediately about an inadvertent launch of the missile. We hope the international community will realize that this incident could have resulted in loss of life in Pakistan or an accidental shooting down of a passenger planes that were flying along the path of the cruise missile. Pakistan has called for a thorough probe into the incident, and we expect India to provide evidence to ensure Pakistan and the world that their weapons are safe and secure. On our part, like early 2019, when Pakistan demonstrated its role as a responsible member of international community by returning the captured pilot of an intruding Indian fighter aircraft, we have once again demonstrated maturity and responsibility in our response. Ladies and gentlemen, Pakistan continues to believe in using dialogue and diplomacy to resolve all outstanding issues, including the Kashmir dispute, and is ready to move forward on this front if India also agrees to do so. With 1/3 of the world engulfed in some sort of a conflict or war, it is important that we keep the flames of fire away from our region. In this regard, besides Kashmir dispute, the Indo-China border dispute is also a matter of great concern for us, and we want it to be settled quickly through dialogue and diplomacy. शेख रशीद का बड़ा और अहम बयान सामने आ गया। मुल्की सलामती का सवाल भी पैदा हो गया। लड़ाई अब गली मोहल्लों तक पहुंच गई है। ज़मीर फरोश जमातों के खिलाफ सियासी ऐलान जंग करता हूं। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इदारों से मदद मांग ली। कहा क्या मुल्क को मकसूद चपड़ासी और दही बल्ले वाले चलाएंगे? ये चोर बाजारी, ये लूट मार, ये सियासी मुर्दे हैं, उनको दफन करना मेरी सियासी जिम्मेदारी है। बड़ा और अहम बयान सामने आया शेख रशीद अहमद का। लड़ाई अब गली मोहल्लों तक पहुंच गई है। ज़मीर फरोश जमातों के खिलाफ सियासी ऐलाने जंग करता हूं। वजीर दाखिला ने अहम बयान दिया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और कहा है कि इदारों से मदद मांग रहा हूं। मजीद इस पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तज्जियाकार मुजाहिद बरेलवी साहब। मुजाहिद साहब, वक्त का बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे? बड़ा बयान सामने आया है। शेख रशीद ने तो हैरत अंगेज बयान दे दिया। वजीर आज़म कल खुद कह चुके हैं कि एस्टैब्लिशमेंट को उनसे 3 ऑप्शन दिए थे, जिसमें तहरीक अदम एतमाद का सामना करने का भी मशवरा था, लेकिन अब ये बयान सामने आया है। देखिए, मैं कुछ आप थोड़ा सा ज़्यादा एक्साइटेड हो गई हैं। मेरा ये ख्याल है कि शेख रशीद साहब का ये बयान जो है, और इससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर या उनकी हुकूमत जो बयान दे रही है, वो एक लूजर वाले होते हैं जब आप रिएक्ट होते हैं। वरना मुझे नहीं था कि वो इस तरह की बातें जो हैं गली मोहल्ले तक आ गई है। उनका ये जमहूरी हक है कि ठीक है, अब मुजाहरे करें, जलसे करें, जुलूस करें, पार्लियामेंट के अंदर बाहर लड़ें। लेकिन मैं ख्याल में इस वक्त शेख रशीद साहब का वज़ीर दाखिला की हैसियत के बयान, मैं तो सॉरी टू से बड़े मेरे वो हैं, एक गैर जिम्मेदाराना कहूँगा। मुझे नहीं इनके वो किसे पैगाम दे रहे हैं, किससे खौफजदा हैं। तो ये इस मरहले पर इस तरह के बयान देने के बजाय इस वक्त देखिए सीधी डेमोक्रेटिक लड़ाई है, और एक बहुत अच्छा मौका मिला है पंजाब में। अगर चौधरी परवेज इलाही को पंजाब में ले आते हैं, उनकी एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। मेरे ख्याल में उनको वहाँ तवज्जो देनी चाहिए। इस वक्त कौमी असम्बली में भी यानी इवन अपोजिशन भी अभी तक इस मामले में इबहाम का शिकार है कि वो पूरे बंदे लाएंगे नहीं लाएंगे। लेकिन गालिबन शेख रशीद साहब की मैं फिर ये कहूँगा कि ये बयान इस तरह का
धमकी आमेज लहजा ये हुकूमतों को और खासतौर पर शेख साहब जो 50 साल से सियासत में हैं, मुझे तो बड़ा उनका एक अनयूजुअल सा ये लग रहा है। और इस तरह वो अपने हामियों को, अपने सपोर्टर्स को, और वो जो आप गली मोहल्ला वालों को कह रहे हैं, वो अच्छा पैगाम नहीं दे रहे। देखिए, एक तो वैसे ही रमज़ान शुरू हो गया है, आपको पता है पाकिस्तान में ये बहुत बड़ा जो है वो जो अक्सरियत है, चाहे इवन जो रोज़ा ना भी रखें, वो वन नज़र वे इसके एहतराम में आहिस्ता आहिस्ता स्क्रीनों से और सियासत से दूर हो जाते हैं। तो वो लोगों को दिलचस्पी नहीं है जिस गली मोहल्ले की बात करते हैं, लोग तो मस्जिदों का रुख करते हैं सॉरी टू से। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि शेख साहब के बयान में कोई ऐसी चीज़ है जिसे मैं नई बात कहूँ, जिससे नहीं समझूँ अगले 24 या 48 घंटे में कोई बहुत बड़ा बहरान खड़े होने वाला है, कोई बहुत हंगामा होने वाला है, कोई गली मोहल्ले में कूचों में लड़ाई होने वाली है। जी, गली कूचों में लड़ाई तो नहीं होने वाली मुजाहिद साहब, लेकिन उन्होंने अपोजिशन को ये तो कह दिया कि चोर बाजारी है, लूट मार भी यहाँ पर है और ये सियासी मुर्दे हैं। देखिए, ये बयान हज पहली बार तो नहीं दे रहे, ना अपोजिशन के बयान नहीं हैं। लेकिन मैंने कहा ना, अब जो ये जो फाइनल राउंड है, ये अभी तक थैंक्स गॉड, अल्लाह का शुक्र है कि तमाम जलसे जुलूसों के बावजूद आज तक पीसफुल है, और मुझे यकीन है ये पीसफुल रहेगा। क्योंकि इस वक्त आप ये ना समझें कि जो आपकी जो हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट के बार बार नाम ले रहे हैं, और मेरा कहने का मकसद ये है कि फौज से इस्लामाबाद एक छोटा सा शहर है, जब वहाँ कोई इवन प्राइम मिनिस्टर को भी हटाया निकाला जाता है नवाज शरीफ जाने से, लोग शायद अभी सड़क वालों को पता भी ना होता हो, तो आई स्क्रीनें बताती हैं। मैं नहीं समझता कि उनके इस बयान से कोई बहुत बड़ा बहरान खड़ा होगा, कोई बहुत बड़ा क्लैश होगा। हाँ, उनकी गुफ्तगू भी मुजाहिद साहब का कहना है कि मैं नहीं समझता कि उनके इस बयान से कोई बहुत बड़ा बहरान आएगा या कोई हंगामा बरपा होगा। मुजाहिद बरेलवी साहब, आपने हमें वक्त दिया, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन को एक बार फिर आगाह करें कि लड़ाई अब गली मोहल्लों तक पहुंच गई है। ज़मीर फरोज जमातों के खिलाफ सियासी ऐलान जंग करता हूं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इदारों से भी मदद मांग ली। कहा कि मुल्क को मकसूद चपड़ासी दही बल्ले वालों अब चलाएंगे क्या? ये चोर बाजारी, ये लूटमार, ये सियासी मुर्दे हैं। मजीद क्या कहा, ये भी आपको सुनवाते हैं। मैं अदारों से बराह रास्त दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि इस मुल्क की सलामती का सवाल पैदा हो गया है। लड़ाई गली महल्ले में चली गई है, भावड़ा खाना तक चली गई है। ये 22 करोड़ों को बटेरे समझने वाले लोग, मैं इनके खिलाफ सियासी ऐलान जंग कर रहा हूँ। क्या ये कोई दुनिया की सियासत और इंसाफ है कि मकसूद चपड़ासी और सरवर बल्ले वाले और दही वाले बताशे वाले इस मुल्क को चलाएंगे? ये चोर बाजारी, ये लूट मार, जिन्होंने इस मुल्क को लूटा नोचा, ये सियासी मुर्दे, इनको दफन करना मेरा सियासी जिम्मेदारी है। दो ही रास्ते हैं। नंबर 1 के मुल्क में इंतखाबात करा दिए जाएं। कितने दिन? मैंने आपको कहा हर घंटे बाद इस मुल्क की सियासी सूरत हाल बदलेगी। इस 24 घंटों में फिर कहता हूँ, हर घंटे बाद इन 24 घंटों में सूरत हाल बदल सकती है। एस्टेब्लिशमेंट मदाखलत करे और मुल्क में फौरी इंतखाबात करा जाए, रमजान के बाद करा लें या हज के बाद करा लें। ये हुकूमतें नहीं चल सकती। हल यही है कि अगर ये इलेक्शन न कराएं तो तमाम PTI के लोग नशिस्तों से मुस्तफी हो जाएं। मैं देखता हूँ ये मुल्क कैसे चलाते हैं। अब आपको बताएं कि तहरीक अदम एतमाद की कार्रवाई के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट में धमकी आमेज खत से मुतालिक दरखास्त एडवोकेट नईमुल हसन ने वकील अजहर सिद्दीक के जरिए दायर की है। दरखास्त में सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस पर मुश्तमिल तहकीकाती कमीशन बनाने की इस्तदा की गई है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ अबरार हुसैन से। अबरार, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, तहरीक अदम एतमाद की कार्रवाई का मामला और धमकी आमेज खत से मुतल्लिक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई है। और एडवोकेट नईमुल हसन ने दरख्वास्त दायर करते हुए कहा कि आर्टिकल 184(3) के तहत दरख्वास्त दायर की है और दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस पर मुश्तमिल तहकीकाती कमीशन बनाने का मुतालबा किया गया है। जबकि दरख्वास्त में कहा गया कि मेमो गेट तर्ज पर तहकीकाती कमीशन बनाया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक एक बैनुल अक़वामी साजिश है, जबकि वज़ीर आज़म के खिलाफ साजिश करने वाले गद्दारी के ज़मरे में आते हैं। मुख्तलिफ TV एंकर ने तहरीक अदम एतमाद के और पहले ही बता दिया था, जबकि लंदन में नवाज शरीफ से खुफिया मुलाकातें हुई जहां साजिश तैयार की गई। और दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, वज़ारत दाखिला, वज़ारत खारजा, वज़ारत कानून, FIA और इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया है। जबकि तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JIFA और MKM को भी फरीक बनाया गया है। जबकि दरख्वास्त में तहरीक अदम एतमाद पर कार्रवाई रोकने की इस्तदा के साथ साथ अदालत से रोजाना समाअत करने की। अबरार, आपका पॉइंट भी आ गया, आपने अपडेट किया, साथ ही रहेगा। एक और अहम खबर भी आपसे शेयर कर लेते हैं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने वजारत कानून का चार्ज संभाल लिया है। वजीर आज़म इमरान खान की मंजूरी से फवाद चौधरी का बतौर वजीर
वजीर कानून नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। वजीर कानून फरूक नसीम ने चंद रोज पहले ओहदे से इस्तीफा दिया था, जिसका चार्ज आज फवाद चौधरी ने संभाला। इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मंजूरी से फवाद चौधरी का बतौर वजीर कानून नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और फवाद चौधरी ने अब से कुछ देर कबल वज़ारत कानून का एडिशनल चार्ज संभाल लिया है, जबकि वजीर कानून फरूक नसीम ने चंद रोज पहले ओहदे से इस्तीफा दिया था। फरूक नसीम MKM और PTI की हुकूमत के दरमियान इत्तेहाद खत्म होने के बाद मुस्तफ़ी हुए थे, जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने फवाद चौधरी को वज़ारत कानून का एडिशनल कलमदान सौंप दिया है। जी अबरार हुसैन, आपने हमें अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। खान के खिलाफ साजिश करने वाले कुछ अपने कुछ पराए, कुछ पर्दे के सामने कुछ पर्दे के पीछे। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का ट्विटर पैगाम, कहा सब के सब हैरान और परेशान हैं, किसी के हाथ ठंडे तो किसी के पैर। पंजाब के नए कायदे-ए-वान के लिए वोटिंग आज नहीं होगी। सेक्रेटरी पंजाब असेंबली का कहना है कि आज सिर्फ शेड्यूल जारी होगा, कोई कार्रवाई नहीं होगी। वजीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए वोटिंग कल करवानी है या पीर को, हतमी फैसला स्पीकर करेंगे। जो है आज का इजलास, उसमें सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल जारी होगा और कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो उसके बाद स्पीकर साहब अनाउंस करेंगे, शेड्यूल अनाउंस करेंगे, उसके बाद वो कल का रखते हैं या परसों का रखते हैं, ये इख्तियार उनका है। लेकिन वोटिंग आज तो नहीं हो सकती। आज नहीं है, आज वोटिंग नहीं है। कल शाम वफाक में तकनीकी बुनियादों पर तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी। चौधरी परवेज इलाही 200 वोटों से वजीर आला बनेंगे। साबिक सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान ने बड़ा दावा कर दिया, ऑपोजिशन को कल दिल का दौरा पड़ने वाला है। जराइम पेशा खानदान वजीर आजम और वजीर आला बनने का ख्वाब देख रहे हैं, ऑपोजिशन को कल दिल का दौरा पड़ने वाला है। आपके सामने ये दावा कर रहा हूँ जो रियलिटी के ऊपर मबनी है, इंशाल्लाह चौधरी परवेज इलाही साहब पहली टर्म के अंदर ही 200 से ज़्यादा वोट लेके इंशाल्लाह जो है वो कल वज़ीर आला मुंतखब होंगे। अपोजिशन की और आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन की किस्मत में इंशाल्लाह पहला सियासी दिल का दौरा कल पड़ेगा दिन को इंशाल्लाह, और फिर दूसरा दौरा शाम को टेक्निकल बुनियादों पे वो वफाक के अंदर पड़ेगा। और कितनी बदकिस्मती की बात है कि वो बाप बेटा प्राइवेट लिमिटेड के जो एक मुल्जिम और मुजरिम की हैसियत से ज़मानत पे बाहर आए हुए हैं, वो वज़ीर आज़म और वज़ीर आला का जो है वो ख्वाब देखने लगे हुए हैं। परवेज इलाही इलेक्शन पर हावी होने की कोशिशें करने के लिए जो दरवाजा इस्तेमाल कर रहे हैं वो नहीं काम आएगा। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून पंजाब अज़मा बुखारी ने इल्ज़ाम लगा दिया। मीडिया से बात करते हुए कहा कि इमरान खान और परवेज इलाही को आज बहुत से सरप्राइजेस मिलेंगे। तर्जुमान ने ये दावा भी किया है कि अगर आज इलेक्शन हुआ तो मुस्लिम लीग नून का 25 जुलाई 2018 में चोरी शुदा मैंडेट वापस मिलने जा रहा है। उस्मान बुज़दार गए, अब इमरान खान आप भी जाएंगे, अज़मा बुखारी ने पेशगोई कर दी। परवेज इलाही साहब चोर दरवाजे इस्तेमाल कर रहे हैं इस इलेक्शन के ऊपर हावी होने की कोशिश करने के लिए, लेकिन ये कोशिश उनकी कामयाब नहीं होगी। बहुत सारे सरप्राइजेस आज इमरान खान और परवेज इलाही साहब के लिए तैयार है, तो दिल मजबूत रखिएगा। 25 जुलाई का जो चोरी शुदा मैंडेट है PMLN का, वो आज इलेक्शन हुआ तो यकीनन वो PMLN को वापस मिलने जा रहा है। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ हुकूमत को कि इमरान तो गियो तो आप भी गियो। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी की सूरत में हुकूमत ने नई हिकमत अमली तैयार कर ली। वज़ीर आज़म इमरान खान इस्तीफा देकर नई हुकूमत को मुश्किलात से दो चार कर सकते हैं। मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी या नहीं, लेकिन हुकूमत ने अपनी हिकमत अमली तैयार कर ली है। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान असम्बलियों से इस्तीफे देने का कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे नई हुकूमत बहरान से दो चार हो जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नई हिकमत अमली पर संजीदगी से गौर शुरू कर दिया है। उर्दू के मारूफ अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक कौमी असम्बली में PTI के अरकान की तादाद 155 है, जबकि मेंबरान की कुल तादाद 342 है। अगर PTI और इनके इत्तेहादी कौमी असम्बली से मुस्ताफी हो जाएं, तो नई हुकूमत का चलना मुश्किल हो जाएगा और इतनी बड़ी तादाद में ज़िमनी इलेक्शन कराना भी मुश्किल होगा। दूसरी जानिब ज़राए का ये भी बताना है कि PTI के मुनहरिफ मेंबरान असम्बली इस्तीफे नहीं देंगे। ज़राए का कहना है कि यही मश्क पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी बेक वक्त की जाएगी, क्योंकि वज़ीर आज़म ये समझते हैं कि फौरी तौर पर इलेक्शन में जाना उनके लिए सूदमंद साबित होगा। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के हालिया नताइज PTI के लिए हौसला अफजा हैं और इमरान खान को इंतखाबी मुहिम के लिए अमरीका मुखालिफ बयानिया भी मिल गया है।
वज़ीर आज़म इमरान खान आज दोपहर 3 बजे अवाम से बराह रास्त टेलीफोन पर गुफ्तगू करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान बराह रास्त अवाम के सवालों के जवाबात देंगे। अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान आज दोपहर 3 बजे अवाम से बराह रास्त टेलीफोन पर गुफ्तगू करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान बराह रास्त अवाम के सवालों के जवाबात देंगे। अब आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत अपने ही मुल्क को भिखारी करार देने पर तुल गई। ख्वाजा आसिफ की दबे लफ्जों में अमेरिका की हिमायत के बयान के बाद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान को भिखारी बना दिया। निजी टीवी के इंटरव्यू में कहा है कि शहबाज शरीफ नहीं कह सकते थे हमें अपनी कौम को बनाने के लिए पेट पालना होगा। हमें धमकी दी गई है, खुसूसन अमेरिका को दुश्मन बना के हम अफोर्ड नहीं कर सकते। Beggars can't be choosers. Please understand that. हमें अपनी कौम का पेट पालना है। Beggars can't be choosers. नून लीग की क़यादत अमरीकी हिमायत में खुलकर सामने आ गई। वज़ीर आज़म की जानिब से अमरीका की पाकिस्तान में मदाखलत के इल्ज़ाम को झूठे और बेबुनियाद करार देने पर तुल गए। पाकिस्तानी क़यादत की जानिब से इल्ज़ामात पर साथ देने के बजाय अपने ही मुल्क के वज़ीर आज़म को झूठा करार दे दिया, जबकि शहबाज शरीफ ने तो पाकिस्तानी कौम को भिखारी भी बना दिया। खुसूसन अमेरिका को दुश्मन बना के हम अफोर्ड नहीं कर सकते। Beggars can't be choosers. Please understand that. हमें अपनी कौम का पेट पालना है। Beggars can't be choosers. 2 रोज कबल लीगी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ख्वाजा आसिफ का कहना था कि अमेरिका चाहे तो पाकिस्तान के लिए बेशुमार मुश्किलात खड़ी कर सकता है। उनका कहना था कि हमें जो वेंटिलेटर लगे हुए हैं ये अमेरिका की मर्जी से लगे हुए हैं। हमें इस दुनिया में एग्जिस्ट करने के लिए एक बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी रखनी पड़ेगी। किसी मुल्क को जो है हम जो है वो दुश्मन बना के, खुसूसन अमेरिका को दुश्मन बना के हम जो है माशी जिस इस वक्त हालात से गुजर रहे हैं हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हमें अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने का पूरा हक है और करना चाहिए भी। यही नहीं, गुज़श्ता रोज एक निजी टीवी के एक इंटरव्यू में एंकर ने ख्वाजा आसिफ के बयान से मुतालिक सवाल के जवाब में शहबाज शरीफ ने बयान की मजम्मत की, न ही उस बयान की मुखालफत की। जवाब में शहबाज शरीफ ने अवाम को भिखारी करार दे दिया, कहा हमें अपनी कौम का पेट पालना है। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा हम तो अमेरिका के बगैर रह ही नहीं सकते, वो तो वेंटिलेटर है हमारा, हम घुटनों पे आ जाएंगे अगर अमेरिका ने कोई कदम उठा लिया। ऐसे भी अगर करेंगे तो फिर कहां से हम बराबरी की सतह पे ताल्लुकात मेंटेन करेंगे? देखें कि beggars can't be choosers. Please understand that. हमें अपनी कौम का पेट पालना है। खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ। मुस्लिम लीग नून की क़यादत की जानिब से इस तरह के बयानात वज़ीर आज़म इमरान खान के इल्ज़ामात की तस्दीक करते नजर आ रहे हैं कि हमें धमकी दी गई है। मियाँ साहब, ये कौम भिखारी नहीं है, उसके अशराफिया का एक बड़ा हिस्सा जरूर बेज़मीर है और अपने ज़ाती मफाद के लिए भीख मांगने से भी गुरेज नहीं करते। वफाकी वज़ीर असद उमर का ट्विटर पैगाम लिखा, ये कौम एक गैरतमंद कौम है, इसलिए आज उसके तारीखी नमे में एक गैरतमंद लीडर के साथ खड़ी है। मरकज में सियासी हलचल ने दीगर सूबों में छोटी जमातों में हवा भर दी। अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई सदर और रुकने बलोचिस्तान असम्बली असगर खान अचकज़ई कहते हैं चंद दिनों में अब्दुल कुद्दूस बसिंजो की हुकूमत गिरा देंगे। इस्लामाबाद अमीर हैदर खान होती से बलोचिस्तान हाउस में बाप पार्टी का वफ्द साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल की क़यादत में मुलाकात कर रहा है। पाक बहरिया के जहाज़ों PNS शमशीर, PNS अजमत और मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने जहाज़ कोलाची को अबू धाबी का दौरा किया है। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक अबू धाबी की बंदरगाह पर भी पाकिस्तानी जहाज़ों का भरपूर इस्तकबाल किया गया। मिशन कमांडर, कमांडिंग ऑफिसर्स ने अमाराती बहरिया के सरबराह और दीगर अस्करी हुकाम से अहम मुलाकातें की हैं। मुलाकातों के दौरान पेशा वराना अमूर और 2 तरफा बहरी ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तानी जहाज़ों ने अमाराती बहरिया के साथ मुश्तरका मश्क में भी हिस्सा लिया है। पाक बहरिया के जहाज़ों PNS शमशीर, PNS अजमत और मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसीज के जहाज कोलाची ने अबू धाबी का दौरा किया है। उस्मान बुज़दार ने जाते जाते कैदियों को रिलीफ दे दिया। पंजाब की जेलों में कैद कैदियों की सजा में 2 माह की नरमी का ऐलान कर दिया। जल्द इत्तलाक होगा। उस्मान बुज़दार कहते हैं कैदियों को बुनियादी सहूलतें फराहम करना हमारी जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की PDM सरबराह मौलाना फैज़ुर रहमान की जानिब से आज अपोजिशन अरकान के आज़ाद में अशाया दिया जाएगा। अशाया में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ भी शिरकत करेंगे। अपोजिशन की जानिब से तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग के हवाले से हिकमत अमली को हतमी शक्ल दी जाएगी। अपोजिशन जमातें अशाये में अपने मेंबरान की तादाद को मुकम्मल करेंगी। अपने नाजरीन को आगाह कर रहे हैं कि आज की अहम खबर के हवाले से कि PDM की जानिब से आज अपोजिशन अरकान के आज़ाद में अशाया दिया जाएगा। PDM की जानिब से आज
अपोजिशन अरकान के एजाज में अशाया दिया जाएगा, जबकि PDM की जानिब से आज अशाया में आसिफ अली जरदारी भी शरीक होंगे। और इसके अलावा वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक PDM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से आज अपोजिशन अरकान के एजाज में अशाया दिया जाएगा। अशाया में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, मियां शहबाज शरीफ भी शिरकत करेंगे। अपोजिशन की जानिब से तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग के हवाले से भी हिकमत अमली को हतमी शक्ल आज ही दी जाएगी। अपोजिशन जमातें अशाया में अपने मेंबरान की तादाद को मुकम्मल भी आज ही करेंगी। मजीद के तफसीलात जान लेते हैं चीफ रिपोर्टर इंतजार हैदरी से। इंतजार बताइएगा। जी बिल्कुल, PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान आज तमाम पार्लिमानी जमातों के अरकान को अशाइया दे रहे हैं और ये अशाइया मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से दिया जा रहा है। आज तमाम अरकान को इकट्ठा किया जाएगा क्योंकि कल वोटिंग का मरहला है और वोटिंग के मरहले से पहले तमाम अरकान को इकट्ठा करना है और अपनी पावर शो करना है। हुकूमत की तरफ से, अपोजिशन की तरफ से ये मुसलसल पैगाम दिया जा रहा है कि हमारे पास 200 से ज़्यादा मेंबरान हैं और अब अपोजिशन ये दावा कर रहे हैं कि हमारे पास 220 से ज़्यादा मेंबरान हैं और आज रात को इन तमाम मेंबरान को एक मेज़ पर, एक जगह पर इकट्ठा किया जाएगा और अपना शो ऑफ पावर किया जाएगा। दूसरी तरफ हुकूमत भी अपनी हिकमत अमली मुरतब कर रही है और तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी की सूरत में हुकूमत ने भी अपने इस्तीफ़ों के ऑप्शन पर गौर शुरू कर दिया है और इस हवाले से अब फैसला जो है वो वज़ीर आज़म हाउस में होना है। तो अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ भी मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, अख्तर जान मेंगल, खालिद मकबूल सिद्दीकी और खालिद मक्सी के साथ अपनी हिकमत अमली मुरतब कर रहे हैं कि किस तरह से अपने अरकान को पार्लियामेंट हाउस में ले जाया जाएगा और वोटिंग के अमल को कामयाब बनाया जाएगा और तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाया जाएगा। इसी सिलसिले में आज ये अशाइया दिया जा रहा है इस्लामाबाद में। जी ठीक है, चीफ रिपोर्टर इंतजार हैदरी आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। गर्मियां आते ही इस्लामाबाद में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी शुरू हो गया। वफाकी दारुल हुकूमत में बिजली 2-2 घंटे गायब रहने लगी। शहरियों को बिजली न होने से शदीद मुश्किलात का सामना है। बिस्मा रफीक की रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद में गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। दिन में 1 घंटा बिजली आए तो 2 घंटे के लिए गायब हो जाती है। शहरियों का कहना है अभी तो गर्मी ठीक से शुरू भी नहीं हुई और लोड शेडिंग शुरू कर दी गई है। अभी ये हाल है कि मजीद जून जुलाई में क्या होगा, तो वापडा से अपील है कि लोड शेडिंग पे कंट्रोल किया जाए। बिजली न होने के बाइस खवातीन को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लाइट की जाहिर बात है हर चीज़ में ज़रूरत होती है, कपड़े धोना, पानी वगैरह और इस तरह की जो सारी चीज़ें उनमें बहुत हम लोगों को मुश्किलात होती है। तो हमारी यही अपील है कि जो लाइट है उसमें लोड शेडिंग ना ही हो तो अच्छी बात है। शहरियों का मजीद कहना है कि इस्लामाबाद मुल्क का दारुल हुकूमत है, यहाँ पर तो लोड शेडिंग होनी ही नहीं चाहिए। बिजली से लोड शेडिंग बहुत हो रही है। कैपिटल एरिया इस्लामाबाद है, ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए क्योंकि सारे ब्यूरोक्रेसी यहाँ पे बैठी हुई है। इस्लामाबाद के बासियों ने हुकूमत से लोड शेडिंग के खात्मे की अपील कर दी। कैमरामैन रिजवान अली के साथ बिस्मा रफीक, GTV न्यूज इस्लामाबाद। मौसम गर्मा की आमद के बाद बिजली के बहरान ने एक बार फिर से सर उठा लिया। लाहौर के शहरी बिजली की लोड शेडिंग से परेशान हैं। शहरियों का कहना है कि 5-5 घंटे की लोड शेडिंग से कारोबार भी मुतासिर हो रहा है। अगर रमजानुल मुबारक में यही सूरत हाल रही तो मुश्किलात होंगी। तफसीलात वहीद गुज्जर से जान लेते हैं। जी वहीद, लोड शेडिंग से शहरियों को मुश्किलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें शहर भर में रमज़ानुल मुबारक की आमद से कबल ही बिजली का लोड शेडिंग का जिन जो है वो बेकाबू है और किसी भी इलाके की अगर बात की जाए तो तकरीबन 4 से 5 घंटे की लोड शेडिंग जो की जा रही है। इस वाले से शहरी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। शहरियों से हमारी बात थी, उनका ये कहना था कि बिजली ना आने की वजह से इनका कारोबार भी बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहा है, जबकि अगर यही सूरत हाल रमज़ान में भी रही तो इनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। जबकि महकमे की जानिब से बताया गया था गुज़श्ता 3-4 रोज़ कबल के फ़नी ख़राबी की वजह से ये लोड शेडिंग जो है वो की जा रही है, मगर अब जो है हालात काफ़ी हद तक बेहतर हो गया। महकमे का अलबत्ता ये ज़रूर कहना है कि हतमन ये कोशिश की जा रही है कि रमज़ान से कबल ही इसको जो है जो फ़नी खराबी जो है इस पर मुकम्मल काबू पा लिया जाए, मगर शहरियों के इस हवाले से कहना है कि इंतज़ामिया को ये हालात देखते हुए पहले ही फ़ैसला करना चाहिए था, क्योंकि रमज़ान की आमद है और रमज़ान में अगर सहर और अफ्तार में अगर बिजली की इसी तरह लोड शेडिंग होती रही तो उनका रमज़ान जो है उसमें गुजारा काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अलबत्ता महकमे ने ये तसल्ली दिलाई है कि रमज़ान में लोड शेडिंग कोशिश ये की जाएगी कि बिल्कुल ना की जाए। जी
हमजा शहबाज का पीपल्स पार्टी की क़यादत से राबिता। हमजा शहबाज आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत से मुलाकात करेंगे, जिसमें मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बातचीत की जाएगी। तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ अब्बास नकवी से। जी अब्बास। जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा हमजा शहबाज जैसा कि आज जो है वज़ीर आला के तौर पे खड़े हुए हैं, अपोजिशन की जानिब से मुश्तरका उम्मीदवार हैं पंजाब में, तो इस हवाले से आज हमजा शहबाज जो है 2:30 बजे मुलाकात करने के लिए पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरीट मॉडल टाउन में जाएंगे और इस हवाले से हसन मुर्तज़ा और पीपल्स पार्टी की जो दीगर क़यादत है उनसे मुलाकात करेंगे। गो के पहले ही पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो अपोजिशन में एक दूसरे के साथ चल रहे हैं, लेकिन हसन ज़ाती तौर पर जो हमजा शहबाज है उन्होंने फैसला किया कि वो पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत के पास जाएंगे और उनके साथ बैठ के और मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। जी अब्बास नकवी, आपका शुक्रिया, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। रमजान की आमद के साथ ही कराची की ली मार्केट खजूर मार्केट में लोगों का रश लग गया। खरीदारों का कहना है कि मार्केट में पिछले साल के मुकाबले में इस साल ज्यादा महंगाई है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे वसीम हैदर वहाँ मौजूद हैं, मज़ीद उनसे जान लेते हैं। जी वसीम, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखें इंशाअल्लाह ताला इतवार को भी पाकिस्तान में पहला रोज़ा होगा और रोज़े के हवाले से जो है वो खजूर बड़ी अहमियत का हामिल है, लाजमी जूस करार दिया जाता है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ ली मार्केट खजूर मार्केट में, जहाँ पर लोगों की बड़ी तादाद जो है वो खजूर लेने के लिए यहाँ पर पहुँची हुई है। 200 रुपये से लेके 500 रुपये किलो तक के खजूर यहाँ पर मौजूद है। मुख्तलिफ इक़साम है खजूर की, जिसमें ईरानी खजूर जो है वो सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होता है। इसके अलावा जो पाकिस्तान में तैयार होने वाला और पकने वाला खजूर है वो भी यहाँ पर मौजूद है। खुश्क खजूर भी यहाँ पर मौजूद है, मेवे वाला खजूर भी यहाँ पर मौजूद है। लोग जो हैं वो बड़ी तादाद में मार्केट आए हुए हैं और अफ्तारी के लिए जो है वो खजूर यहाँ पर लिए जा रहे हैं। यहाँ पर हमारी कई पत्तों वालों से बात हुई है तो उनका ये कहना था कि इस दफ़ा जो है वो मार्केट जो है वो पहले से ज़्यादा महंगी है, क्योंकि जो है वो हर चीज़ में किराए में इजाफा हो गया है, पेट्रोल में इजाफा हो गया है, जिसके बायस जो है वो खजूर मार्केट तक पहुंचने में जो है वो उनको काफ़ी जो है महंगे मिलते हैं, जिसकी वजह से वो जो है वो खजूर मार्केट में उसी हिसाब से फ़रोख्त कर रहे हैं। जी कराची जिन्ना यूनिवर्सिटी ऑफ वुमेन में ख़वातीन के लिए जॉब फेयर का इनेकाद किया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में तलबा ने शिरकत की। तकरीब में तलबा को रोजगार के मौके भी फराहम किए गए। मज़ीद तफसीलात बता रही हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ हफ्सा शकील अपनी इस रिपोर्ट में। ग्रेजुएशन की तालीम मुकम्मल करने वाले तलबा के लिए शानदार मौका। कराची जिन्ना यूनिवर्सिटी ऑफ वुमेन में जॉब फेयर का इनेकाद किया गया, जिसमें सैकड़ों तलबा को रोजगार के मौके फराहम किए गए। जॉब फेयर में डिवागो, सिग्मा, अहद फार्मेसी और अल खिदमत समेत दीगर कंपनियों ने शिरकत। इवेंट ऑर्गेनाइजर सोनिया ने कहा, इवेंट फार्मेसी के तलबा के लिए रखा गया है, जिसमें फ्रेश ग्रेजुएट और लास्ट ईयर के ग्रेजुएट तलबा शरीक हैं। इंडस्ट्री साइड पे भी हमारे बच्चे जाते हैं, हमारे कम्युनिटी फार्मेसी पे भी बच्चे जाते हैं और इसके अलावा हॉस्पिटल साइड पे भी जाते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना हम एक इनिशिएटिव ले जिसमें हम अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें तमाम उन एरिया से जहाँ पे हमारे बच्चों को जॉब ऑफर होती हैं। तलबा ने यूनिवर्सिटी में जॉब फेयर के इनेकाद को खुश आइंद करार देते हुए इंतजामिया की खिदमत को सराहा। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है वो पास आउट होने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि उन्हें अब कहाँ जाना है, कहाँ जॉब करनी है। ऐसी रिक्रूटमेंट ड्राइव्स वुमेन्स यूनिवर्सिटी में ज़रूर होनी चाहिए। यहाँ पे ऑनलाइन फार्मेसीज भी अवेलेबल हैं, कम्युनिटी फार्मेसीज हैं, क्लिनिकल फार्मेसीज हैं, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा अबंडेंट ह्यूज अपॉर्चुनिटीज हैं जिससे हम लोग अवेल कर सकते हैं। फार्मेसी के तलबा को रोजगार की फराहमी इवेंट का अहम मकसद था। जिन्ना यूनिवर्सिटी ऑफ वुमेन की तरफ से फार्मेसी के तलबा के लिए जॉब के अनगिनत मौके फराहम किए गए। कैमरामैन अली रजा के साथ हफ्सा शकील, GTV न्यूज़ कराची। कराची में पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन और उसकी मेडिकल एसोसिएशन की जानिब से एशिया एंड इंडोनेशिया की जानिब से मुश्तरका कॉन्फ्रेंस की गई है। कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने तजुर्बे और साइंसी मालूमात पेश करने के लिए दुनिया भर से मारूफ माहिरीन सेहत शरीक हुए। तकरीब में पाकिस्तान के माहिर मुकर्ररीन और तिब्बी माहिरीन ने भी शिरकत की है। कराची में पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन और कन्फेडरेशन ऑफ मेडिकल कॉलेज की जानिब से यहाँ तकरीब की गई थी। अब आप आगे बढ़े, आपको बताएं कराची के निजी स्कूल में सालाना इम्तिहानी नताइज के मौके पर बच्चों की हौसला अफजाई के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में तुलबा ने मुल्की नगमे और शानदार टैबलो पेश करके समा बांध दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कराची में दी लाइट अप स्कूल के ज़ेर एहतमाम सालाना नताइज के ऐलान के मौके पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में तुलबा ने मुल्की नगमों पर शानदार टैबलो पेश करके समा बांध दिया। तकरीब में मौजूद शुरका ने कहा कि स्कूलों में जहां तालीम देना जरूरी है, वहीं ऐसी तकरीबात भी मुनक्किद होनी चाहिए ताकि तुलबा की हौसला अफजाई हो। इस स्कूल की इंतजामिया ने काबिल फ़ख्र काम किया और इन्होंने अच्छा प्रोग्राम अरेंज करके वालिदैन को, शागिर्दों को और इलाके के लिए एक इनकरेजमेंट का बायस बने। तो इस तरह के इवेंट
हर साल होने चाहिए। माशाल्लाह बच्चों की जो है हौसला अफजाई होती है और जो पेरेंट्स ने मेहनत की है उसका भी उनको सिला मिलता है। माशाल्लाह अच्छे इंतजामात हैं। तकरीब के इख्तिताम पर पोजीशन होल्डर तलबा में शील्ड और सर्टिफिकेट भी तकसीम किए गए। कोयटा से ताल्लुक रखने वाली सोनिया मुस्तफ़ा को पाकिस्तान की पहली खातून फुटबॉलर रेफरी होने का एजाज़ हासिल है। सोनिया मुस्तफ़ा ने कोयटा में खवातीन को फुटबॉल की तरबियत फराहम करने के लिए अकेडमी भी कायम की है। रिपोर्ट कर रहे हैं कोयटा से मोहम्मद फैजान खान। ये हैं कोयटा से ताल्लुक़ रखने वाली सोनिया मुस्तफ़ा, जो बलूचिस्तान के कबायली माशरे से ताल्लुक़ रखने के बावजूद ना ही टीचर बनी ना ही डॉक्टर, बल्कि उन्होंने खेल के मैदान से खुद को जोड़ लिया। सोनिया मुस्तफ़ा को पाकिस्तान की पहली फुटबॉल रेफरी होने का एजाज़ हासिल है। उन्होंने फीफा फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी पास किया है। सोनिया न सिर्फ खवातीन के फुटबॉल मैचेस में बतौर रेफरी जिम्मेदारियां निभा चुकी हैं, बल्कि मर्दों के फुटबॉल मुकाबलों में भी अपनी पेशावराना खिदमत सरअंजाम देती रही हैं। सोनिया को लोगों की तनकीद का भी सामना रहा, मगर वालिद के सपोर्ट की वजह से आगे बढ़ने में मदद मिली। मुश्किलात तो जाहिर सी बात है कि वुमेन घर से निकलती तो काफ़ी कुछ हमें फेस आउट करना होता है। फैमिली के साइड से भी बाबा का सपोर्ट था, अगर बाबा का सपोर्ट नहीं हो तो फिर काफ़ी इश्यूज होते हैं, भाइयों की तरफ से भी, फैमिली की तरफ से भी, आपके अपने आसपास लोग भी बात करते। बट अब जो है काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई है। अब परमिशन के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो हमें एक इन्वायरमेंट मिल गया वुमेन के लिए प्लेटफॉर्म। पहले हमें ट्रेनिंग्स का इशू होता था, बट अभी हमारे लिए एक स्पेसिफाइड टाइम है जिसमें हम वुमेन सारे यहाँ पे आके खेल रहे थे। सोनिया ने सूबे की खवातीन फुटबॉलर्स की तरबियत के लिए बलूचिस्तान वीमेन फुटबॉल अकेडमी भी कायम की है। जैसे लड़कियां हमारे पास 20 से अबव होने लगी तो हमने प्रॉपर एक अकेडमी लॉन्च की लड़कियों के लिए। और जहाँ तक ये ग्राउंड आप देख रहे हैं जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने हमें बाकायदा वुमेंस के लिए बनाया है, तो यहाँ पे हम डेली रूटीन में जब हमें प्लेटफॉर्म मिला तब फिर बच्चियाँ भी आना स्टार्ट हुई। रही बात परमिशन की पेरेंट्स के अकॉर्डिंग, तो हम पेरेंट्स को यहाँ पे जब भी वुमेंस का टाइम होता है तब वो ये सारा जब इन्वायरमेंट देखते तो इनसे काफ़ी इंस्पायर है, तो बच्चियों को अब आने देते। फीफा की जानिब से पाकिस्तान पे पाबंदी के बाइस सोनिया मुस्तफ़ा मायूस तो हैं, मगर इन्हें उम्मीद है कि ये पाबंदी जल्द ख़त्म हो जाएगी, जिसके बाद सोनिया को बैन अल-अक़वामी मुकाबलों में भी बतौर रेफरी खिदमत देने का मौका मिल सकेगा। कैमरामैन यासिन खान के साथ मोहम्मद फैजान खान, GTV न्यूज़ कोयटा। मिक्स मार्शल आर्ट इंटरनेशनल टूर्नामेंट में मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ियों ने धूम मचा दी। दूसरी जानिब शायकीन ने MMA को खेलों में एक बड़ा इनकलाब करार दे दिया। खेल जुनून का, हिम्मत और ताकत का, कब कहां पंच और किक मारना है कोई कैद नहीं। कराची के इलाके डिफेंस में होने वाले मिक्स मार्शल आर्ट इंटरनेशनल टूर्नामेंट में मुल्की और गैर मुल्की फाइटर्स ने धूम मचा दी। ये अभी आज हम आए KO1 इवेंट पे और ये इवेंट्स यहाँ पर बड़े कम होते हैं, लेकिन ये एक नई स्टार्टिंग है। दुनिया में काफ़ी फेमस हो गए हैं ये अब इवेंट्स। आज का इवेंट बहुत ही बेहतरीन इवेंट है। इसमें इंजरीज तो होती हैं, लेकिन कोचेज़ जो होते हैं अपने प्लेयर को इतना ट्रेन कर देते हैं कि वो खुद को बचा सकते हैं इंजरी से। ये इवेंट ऐसे और होने चाहिए क्योंकि न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़, जी पाकिस्तान के लिए।